Now we will be starting with the first module, which is a theoretical module, which is covering these three topics. So the topics are methodology and morphology of design. What do you mean by optimum design? And what do you mean by system concepts in design? So to move ahead with it, I need your contribution more instead of mine. I have everything on my PPT, but I want to extract it from you. What do you understand by this term? And what will happen for this? We will have some more ideas from your side can improve upon. So what I believe is this should be an interactive session. Okay, so starting with the question number 1, what do you understand by this term morphology? Morphology means, in simple word, it is phases in design. Okay, what are the steps you will be following, or what are the phases you will be going through in designing a component, starting from a inception, that is starting from a thought. आज कुछ है नहीं, सपोज मार्केट में आपने सोचा ऐसा कुछ बना दूंगा, so starting from that thought is your first phase till you get the finished output product is the final phase. Understood what is morphology? Yes. Okay, so on the right hand side only you can see the figure which I have shown of morphology of design. So starting with the feasibility study, the first phase is the feasibility study, in which whatever you have thought, first of all you have to think whether it is feasible or not. आजकल तो हमारे दिमाग में बहुत आइडियाज आते हैं, but is it practically feasible to design that? और अगर है तो आज तक हुआ क्यों नहीं, क्या उस पर लिमिटेशन हो सकती है? That you have to brainstorm among yourself or with you and see whether the product is feasible or not. So that's the first stage. And if you see, the last stage of the morphology is the planning for retirement. So once that product is over, you have used the product for your life. अब कुछ तो कोई भी प्रोडक्ट होगा उसका कुछ तो लाइफ साइकिल होगा. So if it has termed his life cycle, its life cycle, so what should be its retirement plan? उसको हम discard कैसे करेंगे? So let me move forward. So methodology and morphology of design, as someone correctly said, that are phases of a product design. So the first phase which we'll be thinking of is this one. Okay, before that, in exam, you can just have a look on the screen. The same question was asked repeatedly just by framing or just by changing the framing of the question. So the first question which we can expect is, what is morphology, and explain 7 phases of morphology. What do you understand by the term morphology? Explain any 2 phases of it. Illustrate the morphology of mechanical system, etc., etc. Draw flowchart for design morphology and explain with example. Explain methodology for mechanical system, suitable example. So you can see that every question corresponds to only one answer, that is morphology of design. That means what are the steps or phases in design. So this will give you around 5, I think 8 to 10 marks question comes in exam of this related topic. So all the questions point out to one single answer, that is what is morphology. So starting with it, the first step in the, or first phase you can say, the first phase in morphology of design is the conceptual design. Okay, now again, interaction from your side. What do you understand by this term conceptual? चलो, now come तुम्हारा काम ज्यादा है. What is conceptual design? What do you mean by this term conceptual? What? कुछ सोचा सर उसने, फिर स्केच और पेन लेके बैठ गया बनाने. Correct. That's the conceptual design. That's only the conceptual design. कि मेरे पास कुछ दिमाग में है, मेरे पास कुछ concept दिमाग में है कि ऐसा होना चाहिए, and I am doing it. That's the main thing. So here you can see what does that conceptual design phase include. It starts with identification of a need and end with the single most suitable concept. So let me now elaborate on it. This phase starts with what? Design of identification of need. अब कुछ भी आप बनाओगे तो बिना need के बनाओगे क्या? अगर उसकी जरूरत ही नहीं है फिर भी आप बनाओगे? नो सर, कोई भी नहीं लेगा. ठीक है, तो whatever we see or whatever we design or whatever we think of is for a need of a society. So what is that? It start with identification of need. और उसके बाद जैसे सपोज आपको नीड मिला तो आप क्या करोगे? जैसा उसने बोला पेन और पेपर लेके बैठेंगे, एक रफ स्केच बनाया, फिर वो बोलेगा नहीं यार ये रफ स्केच में थोड़ा सा इधर कर्व दे दूंगा तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, इधर ऐसा कर दूंगा थोड़ा और अच्छा लगेगा. So what you will have some possibilities of options of that need, and then finally you will select one single most suitable concept. हाँ ठीक है, ये सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, that will be my design. Understood what is conceptual design? डाउट है किसी को? कॉन्सेप्चुअल डिजाइन क्या होगा? सर, नो डाउट. ओके, देन द सेकंड फेज आफ्टर कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, हमको अभी दिमाग में आ गया कि ये हमारा प्रोडक्ट होने वाला है,
ये कस्टमर की नीड है और आउट ऑफ दैट सेवरल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आई विल बी सिलेक्टिंग दिस वन एज माय फाइनल suitable concept. Then we will go to the step number 2, and that is known as embodiment design. What do you mean by this? Embodiment design. क्या हो सकता है? चलो वापस से लॉजिकली सोचो. आपके पास नीड आ गई, आपने एक पेपर पे स्केच बना लिया और आपने एक सिलेक्ट कर लिया कि हाँ ये मेरा प्रोजेक्ट हो सकता है या मेरा ये मॉडल हो सकता है. क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप? इंग्लिश का छोड़ दो, वहां पर एम्बॉडीमेंट छोड़ दो. करेक्ट, क्या बोला? प्रोटोटाइप. Perfect answer. Then I will build a prototype. Instead of making a huge body or huge machine directly, I will be first building its prototype. Correct, perfect answer. So here it is written, converting a suitable concept of product into system that can be produced. ठीक है, आप एक प्रोटोटाइप बना लो उसका और चेक करो कि वेदर इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस दैट. आपने डिजाइन तो बहुत अच्छा बना लिया, मालूम पड़ा ऐसी कोई मशीन ही नहीं कि वैसा कर दे पाए, या बहुत स्पेशल पर्पज मशीन लग रही है, इससे वो प्रोडक्ट का कॉस्ट काफी हाई हो जाएगा. तो वो सब आपको कहाँ पता चल जाएगा? व्हेन यू मेक अ प्रोटोटाइप ऑफ दैट प्रोडक्ट. ठीक है. सो फर्स्ट फेज इज कॉन्सेप्चुअल, सेकंड फेज इज एम्बॉडीमेंट डिजाइन, दैट इज कन्वर्टिंग अ मॉडल इनटू अ प्रोटोटाइप. चलो ठीक है. नाउ आई विल नॉट शो द थर्ड स्टेप. you yourself figure out what can be the third step of this phase. कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोटोटाइप बन गया, अब क्या होगा? हम डिटेल डिजाइन बनाना पड़ेगा ना इसके बाद. करेक्ट. डिटेल डिजाइनिंग मतलब व्हाट शुड बी इट्स मटेरियल, उसका थिकनेस क्या होगा, उसका मैकेनिज्म्स क्या होंगे, कौन सा मैकेनिज्म कहाँ लगेगा, असेंबली कैसे बनेगी. तो वो आइडिया आपको कहाँ से आता है? बाय लुकिंग एट द प्रोटोटाइप मॉडल. सो द थर्ड स्टेप विल बी दिस वन, एज समवन करेक्टली सेड, द डिटेल्ड डिजाइन. And here you can see what it includes. It includes complete engineering description so that it is ready for production. So आपको सब कुछ दे देना है, उसका मटेरियल क्या होगा, उसकी असेंबली क्या होगी, लिमिट्स एंड फिट्स क्या होगा, टॉलरेंसेस क्या होंगे, उसका क्या बोलते हैं रिलेटिव मोशंस क्या होगा. सो एवरीथिंग यू हैव टू गिव इन द डिटेल्ड डिजाइन. सो फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट, आपके दिमाग में कुछ आया बिकॉज ऑफ द नीड अराइजिंग, then you convert it into prototype, and then you convert it into detailed design. So do you feel it is logical? Yes, sir. Okay, so conceptual, embodiment and detailed. Now okay, चलो detailed design भी बन गई. Now what do you think, what should be the next step? क्या होगा? मैन्युफैक्चर. खत्म, सिंपल, इट विल बी मैन्युफैक्चरिंग. अब देखो ना क्या लिखा है फेज नंबर 3 में, कंप्लीट इंजीनियरिंग डिस्क्रिप्शन सो दैट इट इज रेडी फॉर प्रोडक्शन. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रेडी फॉर प्रोडक्शन होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर प्रोडक्शन ही होगा ना. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी planning for manufacturing. So here in the summary I can write, involves planning of mass production activity of the product. तो अभी ये भी सिंपल है कि हम जो प्रोडक्ट सोच रहे हैं वो एक तो बनाएंगे नहीं, वी आर गोइंग फॉर द मास प्रोडक्शन. सो व्हाट विल बी द जिग्स एंड फिक्सचर रिक्वायर्ड, व्हाट काइंड ऑफ मशीन्स विल बी रिक्वायर्ड, एसेट्रा, दैट विल बी प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चरर. चलो ठीक है. अब मैन्युफैक्चरिंग का प्लान हो गया, अब उसके बाद मैन्युफैक्चर भी हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? चलो गिव अ थॉट प्रोसेस. कॉन्सेप्ट पेपर से हम प्रोटोटाइप पे आ गए, प्रोटोटाइप से डिटेल डिजाइन पे आ गए, डिटेल डिजाइन से हमारा प्रोडक्ट भी बन गया. अब नेक्स्ट क्या होगा? व्हाट शुड बी नेक्स्ट पार्ट? मार्केट में लाएंगे. करेक्ट. मैन्युफैक्चर होगा तो क्या उसको फैक्ट्री में सजाने के लिए रखेगा क्या? नो सर. बेचना, मार्केट में बेचना पड़ेगा ना. सो दैट्स द फिफ्थ स्टेप, दैट इज प्लानिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. सो दैट इज कैप्चरिंग द मार्केट. सो what is will be including is effective ways of reaching the product to the कंज्यूमर. चलो ठीक है, वहां पर भी हो गया. उसके बाद व्हाट कैन बी द नेक्स्ट स्टेप? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पहुंच गया, प्रोडक्ट यूजर तक पहुंच गया. उसके बाद क्या होगा? सपोज तुम्हारे घर पे अभी कुछ एक, सपोज आज तुमने नया टीवी खरीदे, तुम्हारे घर पे टीवी आ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्या करोगे उसके बाद? उसको यूज करते हैं सर. यूज करेंगे, दैट्स इट. सो दैट इज नथिंग बट द प्लानिंग फॉर यूज, हाउ यू विल बी यूजिंग दैट प्रोडक्ट. तो अगेन आई विल रिपीट, आपके पास पेपर पे कुछ था, दिमाग में था, दिमाग से पेपर पे लाए, पेपर से प्रोटोटाइप बना, प्रोटोटाइप से डिटेल डिजाइन हो गई, मैन्युफैक्चर हो गया, कंज्यूमर के घर पे पहुंच गया, कंज्यूमर ने ओपन करके यूज भी कर लिया. अब क्या करेगा? व्हाट कैन बी द लास्ट एंड द सेवंथ स्टेप? हाँ, फीडबैक. और उसके बाद चलो फीडबैक हो गया, उसके बाद एक चीज मैंने बताया था पहले की स्लाइड में, रिटायरमेंट. ठीक है. सो दैट यू ऑल हैव टू सी दैट हाउ शुड वी dump the product or how should we plan it for retirement. So here you can see that disposal of a retired product in environmental friendly manner. So these are the 7 phases of the design, out of which the first 3, if I combine, as someone correctly said, these are known as phases related to design. देखो, conceptual design, embodiment design and detailed design.
So these 3 phases come into the design phase, and the last 4 will come into the phase related to manufacturing. Manufacture हुआ, distribute हुआ, use हुआ, retirement होगा, that all comes under the manufacturing part. So total 7 stages, 3 stages for design and 4 stages for manufacturing. किसी को doubt है कुछ? Any doubts in any of the steps? Okay, so let us go into details of each of them. We will go quickly because it's now very much simple. So conceptual design. Conceptual design, first part is identification of need. As we decided, हम क्यों बनाएंगे कोई चीज? So क्यों बना रहे हम लोग कोई चीज? We have to identify the need. उसकी कोई need है क्या? अगर need है, then only we will go for the, उसके बारे में सोचने का काम करेंगे. So first step will be identification of the need. Then the second step will be the definition of a problem. ठीक है, चीजें तो अवेलेबल है, बट उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है जिसको आपको सॉर्ट करना है. एज अ इंजीनियर यू हैव टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स व्हिच आर कमिंग. हाँ, अगर आप लोग न्यू प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो बात अलग है, बट लेट अस से इफ देयर इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, अब उसके अंदर क्या इश्यूज है उसको आपको सॉल्व करना है. सो दैट इज नोन एज अ डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम. देन द थर्ड स्टेप इन कॉन्सेप्चुअल फेज विल बी फिजिबिलिटी स्टडी. आपने डिफाइन कर दिया प्रॉब्लम, अब वो प्रॉब्लम ऐसा है कि आप सॉल्व तो कर रहे हो, बट आपने सोल्यूशन ऐसा दिया जो फिजिबल नहीं है. अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देते ना, जिसको करना पड़ता है उसको भारी पड़ता है. सुने है ना वो चीज, जिसके ऊपर बीतती है उसको भारी पड़ता है ना. ठीक है, सो यू हैव टू आल्सो सी द फिजिबिलिटी ऑफ दैट डिजाइन. देन फोर्थ वन विल बी प्रिलिमिनरी डिजाइन, wherein you have to just give a rough sketch of the that this component will be placed here. ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, मशीन ऐसी दिखेगी. Just a preliminary design, no need to give any dimension or something. Just a preliminary design कि इस तरीके की मशीन दिखेगी, ऐसे उसके relative adjustments होंगे. Then the fifth step will be brainstorming. You have to, अब यहाँ पर एक अकेले का काम तो नहीं होता है. It's you are designing a machine जिसको 3 से 4 साल लग जाते हैं normally to come into the market. So you have to, don't have to give it a single-handed thought. You have to take the advice from experts. Let us say manufacturing वाले के पास जाओ, हाँ तुम्हारे पास ये चीजें अवेलेबल है क्या, हमारा प्रोडक्ट बन सकता है क्या, उसका कॉस्ट कितना होगा. You have to take advice from various experts. So that is known as brainstorming. What will be the material used? वो मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है क्या, उसके ऊपर कुछ लिटिगेशंस है क्या वो मटेरियल यूज करने पे, तो वो सब आपको सोचना है. एंड देन सिक्स्थ स्टेप विल बी द ऑप्टिमाइजेशन. आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको पता चल गया, हाँ मैंने जो मटेरियल दिया था वो मटेरियल से यूज नहीं हो सकता है, देन व्हिच मटेरियल आई कैन यूज. सो दैट विल ऑल कम इनटू द ऑप्टिमाइजेशन फेज. देन द फेज 2 इज एम्बॉडीमेंट डिजाइन. एम्बॉडीमेंट डिजाइन विल बी प्रोडक्ट आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर मतलब एज आई टोल्ड, वो प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसा दिखेगा बाय यूजिंग द प्रोटोटाइप. यू कैन से और यू कैन कन्वे कि देखो ये मेरा प्रोटोटाइप है, ऐसा ऐसा तुम्हारी मशीन अभी तक क्या था, ऑन पेपर था, अब एक्चुअल में दिख रहा है. So that is known as product architecture. Then second step in embodiment design will be configuration design. What will be the actual machine configuration? Okay, what will be the relative motion between between two parts? What will be the assembly? What will be the kind of process it will be using? So that all will be known as configuration design. And the third part will be parametric design. Parameters means, let us say if I am designing a shaft, so parameters will be length of the shaft, diameter of the shaft, etc., etc. So all the dimensions related to that particular component. So that comes under embodiment design. Then the third phase is detailed design. अब और ऊपर आ जाओ, डिटेल. डिटेल में देखो सबसे पहला क्या है, ओवरऑल डिजाइन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स. जितने भी कंपोनेंट्स आपके मशीन में लगने वाले, छोटे से छोटा स्क्रू भी, वो स्क्रू क्या साइज का होगा, M6 का होगा, M7 का होगा, M8 का होगा. That all you have to give in the detailed design part. Then detailed designing of parts. पहले क्या था, components, छोटे छोटे components. उसके बाद क्या आ गया, detailed designs of parts. अब parts में क्या हो सकता है, let us say if I again take an example of a gearbox, तो gearbox क्या होगा, shaft होगा, gear होगा. That all comes under design of parts. और design of components में उसमें क्या हो जाएगा, shaft का key, shaft और gear के बीच में जो उसको lock करने के लिए key आती है वो component में आ जाएगा. Then third part is preparation of drawing, computer models, etc. So we will convert this all into the production drawing so that we can give to the production department for manufacturing it. And then finally evaluation of the product. कि आपका जो product है वो market में क्या rate में बिकना चाहिए, एक rough estimate, हाँ final नहीं, एक rough estimate that this will be the overall cost of the production. Then we will go to the phase 4.
planning for manufacturing, so which involves, as I say, planning of mass production activity of the product. So what can you tell? What can you tell about this? क्या क्या इसमें include हो सकता है? Automation. Okay, good. Automation, correct. चलो और कुछ? इकोनॉमिक कंसिडरेशंस क्या रहेगी मैन्युफैक्चर करने की? परफेक्ट परफेक्ट, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, गुड. और चलो अभी आपकी तरफ से बोलते जाओ. मेरे पास है 5-6 चीजें मैं बताऊंगा, बट दैट विल बी योर आंसर्स विल बी एडिंग ऑन टू इट. मेरे को देखो 50 आंसर होंगे, पूरे 50 स्लाइड पे नहीं लिख सकता, बट नाउ आई वांट इंटरेक्शन फ्रॉम योर साइड सो दैट वी कैन हैव अ गुड डिस्कशन. चलो, और एक ऑटोमेशन हो गया, एक इकोनॉमिक कंसिडरेशन, इकोनॉमिकल कंसिडरेशन, करेक्ट. और क्या हो सकता है? आई हैव सम पिक्चर्स टू शो टू यू एंड फ्रॉम दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट व्हाट आई वांट टू से. Okay, what you can see about this? What can you tell? What is this? Planning and production. Perfect. Process planning and control. PPC में इसको हम लोग बोलते हैं Process sheet. प्रोसेस शीट. करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज प्रोसेस शीट. तो सबसे पहले तो प्रोसेस शीट बनेगी कि पहला वाला पार्ट कौन से डिपार्टमेंट या कौन सी मशीन पे बनने वाला है, उसका टूलिंग क्या लगेगा, कितना टाइम लगेगा, एसेट्रा एसेट्रा. सो दिस इज नोन एज अ प्रोसेस शीट विच विल कम इनटू द मैन्युफैक्चरिंग फेज. सेकंड थिंग विच आई वांट टू शो इज दिस वन. क्या है ये? प्लांट लेआउट. प्लांट लेआउट, करेक्ट. हमारा प्लांट लेआउट कहाँ पर होना चाहिए? मशीन अगर लेथ है, सपोज एक कंपोनेंट लेथ पे हो रहा है, लेथ के बाद उसको क्या लगता है, लेट अस से बफिंग लगता है या उसको ग्राइंडिंग लग रहा है. तो एक मशीन मेरी लेथ की इधर है और ग्राइंडिंग मशीन प्लांट के उस तरफ है, तो जितना टाइम बनने में नहीं लग रहा है उतना टाइम तो ट्रांसपोर्ट करने में लग जाएगा, यहाँ से वहां लेके जाने में. सो दैट शुड बी नॉट द केस. सो यू हैव टू डिजाइन योर प्लांट और मैन्युफैक्चर फैक्ट्री अकॉर्डिंगली. सो दैट्स द प्लांट लेआउट. Third one, this is, what is this? Fixture. Correct. What are the toolings which we are requiring? What are the jigs and fixture we will be requiring for manufacturing that part? Next one, what is that? Total time required. Total time required. If in or if I go into the more technical details, it is time and motion study. Just observe the table. Take the cover from bin. उत्ते को भी 6 सेकंड लग रहा है, उसको भी काउंट करना है. वर्कर ने बिन में से कवर उठाया, 6 सेकंड लगेगा उसको कवर उठाने के, यहाँ तक लाने के लिए. ठीक है, 6 सेकंड. बफिंग कर रहा है कवर को, 33 सेकंड में वो मशीन पे बफ करेगा. फिर उसको जो ऊपर बर वर आया होगा वो साफ करेगा, उसके लिए 11 सेकंड ले रहा है. फिर वो जो ट्रे में रखना है वो ट्रे उठाएगा शेल्फ में से, उसको 8 सेकंड लग रहा है. सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर डूइंग द माइक्रो टाइम स्टडी इन सेकंड्स कि हाउ मच टाइम यू विल रिक्वायर फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट. सो दैट इज नोन एज द टाइम एंड मोशन स्टडी. फिर ये क्या होगा, दिख के ही समझ में आ रहा है. Quality assurance. करेक्ट. क्वालिटी एश्योरेंस. वी हैव टू आल्सो बिल्ड वन क्वालिटी एश्योरेंस सेल, जहां पर जो आपका प्रोडक्ट बन के जाएगा वो चेक होगा वेदर इट इज अ गुड क्वालिटी और नॉट. लेट अस से आपने बोला है कि मैंने शाफ्ट का डायमीटर 8 बनाया है या 10 बनाया है. अब वो 10 में आपने प्रोसेस शीट में लिखा होगा कि वेरिएशन कितना चलेगा, 10.02 या पर माइनस में 9.89. बस इससे ज्यादा डिविएशन होगा देन वी कैन से दैट रिजेक्ट द प्रोडक्ट. तो वो चेक करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस सेल होना चाहिए, विच विल इंस्पेक्ट योर ईच एंड एवरी पार्ट एंड देयर बाय द मशीन एंड विल अश्योर that this is a good quality product or good quality machine. Next is this one. What is this? Estimate. So as I told, you have to give a rough estimate of your product. Okay. So these are some of the things which we can think of planning in manufacture. And as you correctly said, जो हमने सोचा था पहले वो भी हो सकता है. I cannot put everything on one slide. That's why I have taken some of them. Okay. So this was all about the details of planning for manufacture. Then we have planning for distribution. क्या हो सकता है इसके अंदर, चलो बताओ. पैकेजिंग, प्रोडक्ट को किस में पैक. Perfect packaging. How to pack your product perfect. और transportation, correct. What means of transport you will be using, whether you will be using airways, railways, roadways, etc. ये आपको सोचना है. उसके बाद ठीक है, और क्या हो सकता है. तो प्रोडक्ट का प्रमोशन भी तो करना पड़ेगा ना. करेक्ट. दैट्स वन थिंग. प्रमोशन करना पड़ेगा. मार्केट में माल चलेगा बट तुमने कुछ एडवर्टाइजिंग नहीं किया तो कौन खरीदेगा आपका प्रोडक्ट. So this all again I have the same thing in form of pictures. So you can see first is the marketing strategy. डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चाहिए ना, कितने प्रोडक्ट में कहाँ बेचूं, डिमांड कहाँ ज्यादा है. तो पहले मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि मैं चीजें कहाँ भेजने वाला हूँ. देन अब फैक्ट्री से माल निकल गया पूरा, तो फैक्ट्री से निकल गया वेयर हाउस में, उसको स्टोर करना है, वहां से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सप्लाई एंड डिमांड. ठीक है, सप्लाई और डिमांड OR में पढ़े थे, वेयर हाउस टू सप्लाई पॉइंट्स. देन पैकिंग एज समवन टोल्ड, वेयर हाउस से क्या होगा, ऑर्डर आया फौरन उसको कोई अच्छे से डब्बे में पैक करो. पैकिंग कैसे होगा, अंदर थर्मोकोल शीट डालना है. कोई डब्बे पे आपको देखो लिखा रहता है हैंडल विथ केयर, देखिए हो कभी. Yes, sir. कोई जगह पे एरो बनाया रहता है. फॉर एग्जांपल फ्रिज या वॉशिंग मशीन आपके घर में कभी आएगा तो उसमें एरो बना रहता है
कि आपको डब्बे को इसी तरह रखना है. दैट all are the instruction which has to be posted on the packing box. ठीक है. So this comes under the distribution planning. And the last one which I can think of is this one. Packing हो गया. अब क्या करना है, उसको reach करना है to the consumer. So you can see from warehouse it is going to the consumer by some logistic means. So this all comes under planning for distribution. The sixth phase will be planning for use. इसमें क्या आ सकता है? वो गाइड जो रहता है. Perfect. Instruction manual you can say, correct? यस सर. Yes, sir. Okay. और कुछ So और क्या safety दिमाग के में आ रहा है? considerations, reliability. Correct. What will be the reliability of the product? और आप अगर लेफ्ट साइड में देखोगे आपको दो आंसर तो वहीं मिल जाएंगे. लेफ्ट साइड में मेरे पास कुछ लिखा हुआ है. Ergonomics. एर्गोनॉमिक्स. अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो बराबर से, आपको यूज करने में, प्रोडक्ट यूज करने में आपको तकलीफ हो रही है, तो आप यूज करोगे क्या उसको? No, sir. नहीं करोगे ना. So that's it. So sir, you can see here the two figures I have given you, the first on left side and right hand side. कौन सा आप प्रीफर करोगे, फर्स्ट वाला क्या सेकंड वाला? First वाला, sir. फर्स्ट वाला. सिंपल. बाहर खड़े खड़े वो मेंटेनेंस का वर्क कर रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, पूरा उसका शर्ट वर्ट सब गंदा सब खराब, उसको अंदर घुसना पड़ा, अंदर कुछ होगा कौन देखेगा वो. So that is how to plan for a use. Then safety, is that important? यस सर. The ergonomics. And the last one is what? क्या हो सकता है वो? रीडिजाइन. Aesthetics. So because of the looks, जो चीज आपको अट्रैक्ट करेगी आप पहले उसको टारगेट करोगे. So just you can see on the left hand side there was some rectangular shape bag. अब उसको बाद में क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा कर्व दे दिया, फिलेट ज्यादा बढ़ा दिया, तो अब अच्छी लिख रही है ज्यादा. सो कस्टमर अगर जाएगा उसको आप वैरायटी दिखाओगे तो आप वो गारंटी वो सेकंड वाला ही चूज करेगा. ठीक है. सो दैट इज प्लानिंग फॉर यूज. एंड द लास्ट फेज इज दिस वन, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, डिस्पोजल of retired product in environmental friendly manner. So you can see that can be recycled. तो जैसा मैंने बोला आपने मशीन पार्ट्स है, क्या करोगे, लोखंड निकाल के किसी को दे दिया, उसने उसको मेल्ट किया, मेल्ट करके फिर से मोल्ड पे डाल के एक नया प्रोडक्ट तैयार हो गया. सो दैट वाज द रिसाइकलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो बस दैट वाज द लास्ट, जो भी था यहीं तक था. आप जा सकते हैं. नमस्ते.